Good morning, students. How are you? I welcome you in our IT class. Chapter number 3, Office Automation Tools. Students, in previous class, we have started chapter number 3, that is Office Writer. It is the open source software which is available, which we can do whatever we want to type, edit, format, like different type of letters, documents, paragraphs, etc. It is used for doing that. In previous class we have studied what is Office Writer, what we can do with it, and its different screen components and different commands like file, edit, the view, which is basically used to check the different views of our document. Then insert tab, which is basically used to add page numbers, date, header, footer, tables, hyperlinks, etc. And then what are the different other commands? Now today we will discuss format tab. Formatting means to decorate our web page and the page contents as well. The Format tab consists of commands required to format the document. It contains several commands like page, paragraph, insert, insert bullets, styles, formatting, etc. All these commands has their own functions. Like if we talk about the page command, it is basically used to edit the page, means entire page of the document. The paragraph command is used to edit the paragraph. Then it comes the format characters. Whatever you type, you can change its size, style, and colors to change the selected text. You can also change the background of the different characters, and these characters are known as text. Second, format paragraph. A paragraph can contain different lines and indentation, whatever you want. You can also set its boundaries. You can also set its background. Then it comes format bullets and numbering. If you want to add bullets or numbers in front of your paragraph, then you can use this command. Format page. Format page dialog box allows the formatting of the whole page, like page border, page color, alignments, and number of columns, etc. If you want to change the case of the text, the case means if you are typing either in small letters or capital letters. The small letters are known as small caps and capital letters are known as capital case. In this you can also set whatever you want. Then there are the other cases also, like sentence case. In sentence case, the first letter of the paragraph will be capital. Then you can also have the toggle case, means if you have selected the toggle case, then the letters which appears in smalls, they will appear in capital, and the letters which appears in smalls, they will appear in capitals. So like this you can do it. Then it comes page format. The page format option contains different page numbers, borders, colors, alignment, etc. Then it comes change number. Change number means you can insert the page numbers and columns of it. Then change the alignment of the text. There are three horizontal and three vertical alignments are there, like left, right, center, and fourth one is also there, that is justified. And it is also, you have the second type of alignments like top, middle, and bottom. Whatever you want, you can set it.
These are the different options available of format command. First is that whatever you want to attach as a background border, their size, color, style. Then second contains the different type of bullets which you can add with the text on your document. Then students, there are the other options also which you are watching them in the different colors. Different color means भाई आप लोगों ने जो है किस तरह का जो है बॉर्डर लगाना है, उस बॉर्डर का जो है आप लोग यहाँ से सबसे पहले पेज बॉर्डर आप सेलेक्ट करेंगे। पेज बॉर्डर जो है आपके पेज के चारों तरफ होगा। उसके बाद डिफरेंट स्टाइल्स पर आप क्लिक करते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स आएंगे, उसमें से आपने जो अप्लाई करना है सेलेक्ट एनी वन दैट। देन सेकेंड यू कैन आल्सो सेलेक्ट इट्स थिकनेस, इसकी जो है कितनी जो है आपकी मोटाई जो है आपके बॉर्डर की होनी चाहिए। एंड बिलो टू इट यू कैन आल्सो सेलेक्ट इट्स टाइप, उसका टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो है आप लोग इसमें कोई आर्ट लगाना चाहते हैं तो आप जो है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन आता है वट एवर आइदर यू वांट टू अटैच इट टू द टेक्स्ट ओनली, अगर आप टेक्स्ट पर करते हैं टेक्स्ट के चारों तरफ होगा, और अगर आप पेज को करते हैं तो पेज के चारों तरफ होगा आपका। तो इस तरह से जो है आप लोग ये अपने बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है जो नीचे की जो फिगर दिया गया है फिगर 3.18, इसके अंदर क्या है कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया था सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल एवरी वर्ड एंड टॉगल केस। फिर इनके अंदर देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटेंस केस की। सेंटेंस, जब भी हम कोई नया सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो जब जो कि आप लोग जहाँ पर भी नया सेंटेंस लिखेंगे अगर आप ये सेलेक्ट कर देते हैं तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है ये आपका कैपिटल बना देगा, बाकी सभी जो है स्मॉल्स में रखेगा। नाउ इट इज़ लोअर केस। लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स, भाई इसको जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उनको सभी को जो है स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। अपर केस का मतलब है कि भाई जो है आप लोग अगर उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहते हैं, सपोज करिए आपने इसको पहले स्मॉल्स में लिखा हुआ था, कैपिटल्स में कन्वर्ट करना है तो यू कैन सेलेक्ट द अपर केस। नेक्स्ट आता है कैपिटलाइज एवरी वर्ड, कि अगर जो कि आप लोगों ने हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल अगर करना है देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन कैपिटलाइज एवरी वर्ड। देन इट केम्स टॉगल। टॉगल मीन्स उल्टा। अगर जो है जो लेटर्स आपके स्मॉल्स में होंगे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है उनको एक कैपिटल में कर देगा, और जो कैपिटल केस में होंगे उनको जो है स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका जो बी पार्ट है वो आप लोगों को और दिखाता है, वो आपके हैं अलाइनमेंट्स के बारे में। अलाइनमेंट में सबसे पहले क्या है, लेफ्ट, द टेक्स्ट विल बी अलाइंड लेफ्ट। अब अलाइनमेंट देखिए क्या होता है। अलाइनमेंट मीन्स द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट जो है किस पोजीशन के अंदर है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, टॉप में है, बॉटम में है या सेंटर में है। अब ये कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। लेफ्ट मीन्स द एवरी लाइन ऑफ द पेज विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, भाई जो भी आपके स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो जो है आपका एक लेवल के अंदर होगा, और जो राइट साइड में होगा जहाँ पर आपकी लाइन ख़त्म होगी वहाँ पर जो है वो जिग जैग्ड होगा, कोई आगे होगी कोई पीछे होगी, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द लास्ट वर्ड। देन इट कम्स सेंटर्ड। सेंटर्ड का मतलब क्या है, यूर टेक्स्ट विल बी इन द सेंटर। मीन्स सेंटर से जो आपके डॉक्यूमेंट जो भी लाइनें होंगी वो सेंटर में तो स्टार्ट होंगी, और जब तक जो है जो आपके दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड होगा वो जो कि आपकी एक तरह की नहीं होंगी, वो कम ज़्यादा हो सकती हैं लाइन वाइज। देन इट कम्स राइट अलाइन। अब राइट अलाइन में क्या है, जैसे लेफ़्ट अलाइन में जो है लेफ़्ट साइड क्या थी टेक्स्ट की वो एक पॉइंट पर से स्टार्ट होती थी, यहाँ पर राइट साइड में जो राइट साइड ऑफ द लाइन्स विल बी इन सिमेट्री, कि जो हमारे राइट साइड की जो लाइनें होंगी, राइट साइड जो होगा हमारी लाइंस का वो एंडिंग पॉइंट जो है एक होगा, बट स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आगे पीछे हो सकता है। एंड फोर्थ वन इज़ दैट, और फोर्थ है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब क्या है, इन दिस जस्टिफाइड मीन्स द टेक्स्ट will start from the same point and will also end from the same point। स्टार्टिंग और एंडिंग जो आपकी लाइनों की होगी वो सेम पॉइंट पर होगी, बट द गैप विच विल बी
इन द लास्ट इट विल बी बिटवीन द डिफरेंट करेक्टर्स, वो करेक्टर्स के बीच में जो है गैप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग जो होगी वो सेम पॉइंट्स पर होंगी सभी की। देन देयर आर द वर्टिकल अलाइनमेंट्स, ये आपके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स थे, लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट एंड जस्टिफाइड। अब जो आपके वर्टिकल अलाइनमेंट्स जो हैं उनके अंदर आता है टॉप। टॉप का मतलब क्या है कि भी जो है अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल अलाइनमेंट, जो आपका पेज होगा जो ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ होगा, उसके अंदर जो है 3 तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं। सबसे पहले आता है टॉप, मीन्स आपका स्टार्टिंग टॉप से होगी और जो भी स्पेस छूटेगा वो नीचे छूट जाएगा आपका, मीन्स बॉटम में छूट जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं सेंटर, या आप उसको कह सकते हैं मिडल, कि जो आपके पेज की स्टार्टिंग होगी वो मिडल से होगी। अगर आपके पेज में स्पेस छूटता है, इक्वल स्पेस ऊपर छूटेगा, इक्वल ही जो है वो बॉटम की तरफ छूटेगा। अगर आपकी बात आती है बॉटम के ऊपर, जो भी स्पेस जो आपके टेक्स्ट स्टार्ट होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड स्पेस विल बी लेफ्ट ऑन द टॉप, कि भाई जो है जो स्पेस छूटेगा वो आपके टॉप में छूटेगा, वो आपकी बॉटम से लाइनें स्टार्ट होंगी। जितना भी स्पेस आपका डॉक्यूमेंट ऑक्यूपाई करेगा वो बॉटम से करेगा, जो भी ब्लैंक रह जाएगा वो टॉप से हो जाएगा। और अलाइनमेंट बेसिकली होता क्या है, द वाइड स्पेस अराउंड द पेज इज़ नोन एज द अलाइनमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो कि हमने हमारे जो पॉइंट्स जो भी हमारे जो आज तक के हमने जो कवर किए हमने चैप्टर के अंदर, जैसे टेबल, हमारा टेबल टैब हो गई एंड डिफरेंट कमांड्स ऑफ इट, देन एडिट, उसके बाद हमारा आता है व्यू, व्यू के बाद जो है फॉर्मेटिंग। इस तरह से जो कि हमने ये वाले टैब जो है हमने किए हैं, एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।